Hello student, today we will discuss the another chapter of physics, that is force and laws of motion. This is the portrait of Galileo, who gave the important laws regarding the motion of the object. Next, another one, our scientist Sir Isaac Newton, he also gave the laws of motion and concept of force. In this chapter, we will discuss what is force, what is the effect of force, balanced force, unbalanced force, Newton's first law of motion, inertia, momentum, Newton's second law of motion, applications of second laws of motion, third law of motion, applications of third law of motion, and law of conservation of momentum. So one by one we will discuss. First is force. What is force? In this diagram you see we can move the block by pushing it. In another diagram you show that we can also move the block by pulling it. Then we conclude that a push or pull on a body is called force. Here is another example of pushing and pulling of block. Here you see this is the pulling of block through the pulley, and here is the pushing the block in upward direction. This is the push or pull. So this is also the example of pushing and pulling. When through the hammer we fix the nail by pushing it, then we conclude that, and we can say that what is the effect of force. The effect of force, if we push a body, then the body moves, or you can say that a body at rest can be moved by a force. We take another effect of force. Here a moving body comes into a rest by the application of force, or you can say that a body in motion can be stopped by a force. Here we see the effects of the force in first diagram.
A rest body can be moved with the help of force, and in the second diagram we see a moving body can be stopped by a force. Again, we can see we can change the direction of the force by applying the force. If a moving body goes up by applying the force, we change the direction of the body. Or you can say that a body in motion can be changed in its direction of motion by the force. Here is also the examples. When we pull the spring, its shape is changed. Then we can say that a spring can be changed in its shape or size by applying force. In another example, we see the spring can be changed in its shape by compressing. Okay? Then a body or your spring can be changed on compressing its shape or size by a force. Now the effect of force is as first, a force can move a stationary body. Second, a force can stop a moving body. Third, a force can change the speed of a moving body. Fourth, a force can change the direction of moving body. Fifth, a force can change the shape and size of a body. Then, what is force? Then we can define the force as a force is an influencing agency which tends to move a stationary body or which tends to stop a moving body or which tends to change the velocity of the moving body or which tends to change the shape and size of the body. This is the definition of physics on the basis of effect of force. This is the definition of force on the basis of effects of force. Now, there are two types of force. One is balanced force. Okay? The balanced force, it is if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balanced force. मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, इसमें एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. Then that force is called balanced force. Here is a block placed on a table. Then the weight of the block acts vertically downward and reaction of the table acts vertically upward. So here is two forces acting on a body. One is weight acting downward and another is the reaction of table acting upward. Both the forces are equal
and in opposite direction, one is downward and another is upward, then net force will be 0. ठीक है, upward force अगर positive तो downward force will negative, and if the magnitude of two forces are same, then net force will be 0. In this case, the body, or you can see here, the block does not move either upward or downward, or you can say the block is at rest. ठीक है, तो जब बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होगा तो उसमें अगर वो रेस्ट है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा, ऑल्दो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब इसमें और भी फोर्स हम लगा सकते हैं। देखिए, एक फोर्स हमने लगाया, दोनों साइड से फोर्स हम एक से पुल, दोनों साइड से पुल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इफ both the two forces are same, then now in a block 4 forces acting simultaneously। ठीक है, 4 फोर्स दिख रहा है। एक फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर लेफ्ट एंड राइट फोर्स भी इक्वल हो तो अपोजिट है इन डायरेक्शन, देन नेट फोर्स विल बी 0। तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लॉक स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये चारों फोर्स अगर एक ब्लॉक पर लग रहा है और ब्लॉक रेस्ट में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम इन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो the block on the table is acted upon by many forces, and force F applied by the left hand is being balanced by the force applied by the right hand. The weight W of the block is balanced by the reaction R. Therefore, net force acting will be 0. So when a body at rest is acted upon a balanced forces, the body is not displaced, that is, the body remains stationary, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, और when a balanced forces act on a body moving with a constant velocity, they do not produce any acceleration on the body. The body continue to move with the same speed and direction. In this case, when balance force acting on a moving body, then the velocity of the moving body does not change. Okay? Next, when a raindrop falls from cloud at a greater height, the drop at first gained velocity due to gravity of Earth, and after falling through some height, the stage called equilibrium occurs when downward weight of the drop is balanced by the upward force, such that upthrust, और यू कैन से विस्कस फोर्स। तो जो ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है और अर्थ पर ड्रॉप गिरता है तो उस पर 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक तो वेट ड्रॉप का डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, और एक फ्रिक्शन आप कह सकते हैं एयर के साथ, है ना, जिसको आप थ्रस्ट या विस्कस फोर्स भी कहते हैं। तो वो दोनों अगर बराबर हो गया, इक्वल हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स विल बी 0 and the velocity of the drop
becomes constant. ठीक है, the net force acting on the drop will be zero, hence the no more acceleration is produced on the drop. Therefore, the raindrop move with constant velocity, which last gained by the drop just before reaching equilibrium position. Okay. Can you imagine the speed of the raindrop while reaching the surface of the earth if they continue to move only under the action of gravity? Suppose the clouds are at the height of 3 kilometer, acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, initial velocity is 0, then the final velocity gained by the drop will be 617 kilometer per hour, which is very high speed, but it is not so due to the balanced force. ठीक है. Though the balanced force cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body, then they can, however, change the shape of the body. Okay. Balanced force can change the shape of the body, but it does not give motion of the stationary body, or it does not change the speed of moving body, but it can change the shape of the body. When a ball is pressed between the hands, the forces are balanced, बट द बॉल इज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ऐसा करके देखिए कि अगर आप दोनों तरफ से हाथ के बीच में बॉल रख के प्रेस कीजिए, ठीक है, तो बॉल का शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन मोशन में बॉल या तो लेफ़्ट और राइट मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बैलेंस फोर्स लग रहा है, बट चेंज शेप में चेंज हो जाता है बॉल का। तो बैलेंस फोर्स शेप में चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा है, डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, जस्ट अपोजिट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, in the case of balanced force it is zero. Okay, now unbalanced force can move the stationary body or they can stop a moving body. When we walk on a force acting on a body, when we usually means an unbalanced force. Here is the diagram. When the total force on the plane is in one direction, the force is called unbalanced force. An unbalanced force changes the motion of a plane. For instance, when thrust is greater than drag, it is the unbalanced force and causes the plane to speed up or accelerate. In addition, as the velocity of the plane increases, the lift force increases and becomes the unbalanced force that causes the plane to fly. Okay? Here is the another example of unbalanced force. Okay, एक ब्लॉक टेबल पर रखा है, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है W, रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करता है बाय द टेबल, और
दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर हम ब्लॉक को पुश करें तो एक फ्रिक्शन एक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, देन इट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर से देखिए, अगर ये अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, देन इट मूव्स। ओके, तो इस केस में इनिशियली द बॉडी कहाँ था? एट रेस्ट, और ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स इट्स मोशन, इट कम इनटू अ मोशन। ओके, the weight of the block is balanced by the reaction by the table on the block. As long as the applied force is less than the balanced force, the block is not moved. But when the applied force is just equal to the friction, the body may move with uniform velocity. When the applied force is greater than friction, the body moves with acceleration. When the body moves with acceleration, then the body is acted upon unbalanced force. Now, Newton's laws of motion. The block remains at rest unless and until it is acted upon by an external force. आपने देखा कि एक ब्लॉक है जो टेबल पर रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको मूव नहीं करा देते। ठीक है, ऐसे ही बॉल के केस में भी होता है। अगर बॉल कंटिन्यूसली मोशन में है तो वो स्टॉप नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। देखिए, बॉल रुक गया। ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, and a body in uniform motion will continue to be in uniform motion unless and until it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. फिर से आप देखिए कि अगर कोई ब्लॉक है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मोशन में लाना है तो हमें क्या करना होगा? एक फोर्स अप्लाई करेंगे, देन इट कम्स इनटू मोशन। तो इसका मतलब कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रहेगा रेस्ट में अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसी तरह से अगर कोई बॉल रेस्ट में है तो वो मोशन में है तो दे विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया is the inherent property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. इनर्शिया बॉडी के इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उसमें अगर कोई आप चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? अगर वो रेस्ट में है तो अगर मोशन में लाना चाहेंगे तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। उसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी बॉडी का होगा
वो इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड इन पार्ट्स वाया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दो पार्ट में इनर्शिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। मास इज द मेजर्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अगर जिस बॉडी का मास ज़्यादा है वो बॉडी ज़्यादा अपोज करेगा जब हम उसको उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या उसके मोशन को चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसको पुश करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी वो रेस्ट से मोशन में आने के लिए फोर्स ज़्यादा उसको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि उसकी जो रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द लाइट बॉडी। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। हैवियर बॉडी है मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडी। ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया कि स्टोन ऑफ साइज ऑफ ए फुटबॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। ठीक है, अ क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल। क्रिकेट बॉल हैवी होता है, जबकि साइज दोनों का अगर सेम रहे फिर भी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब दो पार्ट में हमने बांध दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखिए कि जब स्ट्राइकर से हम कैरम की गोटी को स्ट्राइक करेंगे तो जिस भी गोटी पर स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा वो गोटी मूव होगा, रेस्ट ऑफ द जो गोटी है वो उसी जगह रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वे देखिए, जिस पर स्ट्राइक किया वो मूव कर गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो वो है डाइस है वो रिमेन एट रेस्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक हमने कार्डबोर्ड ग्लास के ऊपर रख लिया, ठीक है, इसके ऊपर कॉइन रखा। अब हम कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करेंगे, सर्टेन जर्क देंगे तो क्या होगा, कार्डबोर्ड तो निकल जाएगा लेकिन कॉइन कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करेगा। ठीक, वो कहाँ गिर गया, ग्लास के अंदर। देख लिया आपने। फिर से आप देखिए, अगर किसी कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉइन रख के उसको ग्लास पर रख दिया और कार्डबोर्ड को हिट किया तो कार्डबोर्ड मूव हो गया लेकिन कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि कॉइन की टेंडेंसी मूव करने की नहीं है, उस पर फोर्स नहीं लगाया फोर्स किस पर, कार्डबोर्ड पर, तो कार्डबोर्ड पर मूव हो गया। लेकिन कॉइन की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उस पर तो फोर्स लगाया नहीं, तो वो कहाँ गिर गया, ग्लास में। ठीक है, लेकिन कार्डबोर्ड जिस पर फोर्स लगाया वो तो मोशन में आ गया। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Few more examples of inertia of rest are: a passenger in a bus jerks backward when the bus starts suddenly because the passenger tends to be in inertia of rest, whereas the bus is moved away forcefully. बस का मूवमेंट होता है, बस आगे बढ़ता है, बस में फोर्स लगता है, मूव होता है आगे, लेकिन पैसेंजर जो बस में है वो उसकी टेंडेंसी रेस्ट में थी पहले, तो रेस्ट में ही रहने की हो रहती है, इसकी वजह से वो पीछे की तरफ जर्क महसूस करता है। ठीक है, व्हेन अ बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली, डस्ट पार्टिकल
fall away as they tends to be inertia of rest, है ना। जब बेडशीट को हम झाड़ते हैं तो बेडशीट मोशन में आ जाता है। डिस्टर्बेंस बेडशीट में फोर्स लगाते हैं जर्क का, तो बेडशीट मोशन में आता है। लेकिन जो डस्ट उसमें चिपका है वो रेस्ट में था, उस पर तो फोर्स नहीं लगाया, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो बेडशीट से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप ब्रांच को हिला देते हैं तो ब्रांच मोशन में आता है, जो उसमें लगा हुआ मैंगो है वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, इसीलिए उसमें जर्क लग जाता है और जो फल है वो टूट के गिर जाता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, a passenger in a bus jerks forward when the bus stops suddenly because the passenger tends to be inertia of motion whereas the bus is stopped forcefully। जब कोई बस चल रहा होता है तो पैसेंजर भी मोशन में होता है बस के साथ, और जब बस सडनली ब्रेक लगाता है तो बस रेस्ट में आता है। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी बॉडी, जो शरीर है, जो आदमी है, पैसेंजर है, उसका शरीर तो मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए आगे की तरफ जर्क लगता है, आगे की तरफ वो मूव कर जाता है। इसी तरह से एन एथलीट आफ्टर रीचिंग द फिनिशिंग पॉइंट कैनॉट स्टॉप सडनली, और इफ ही स्टॉप सडनली then he falls toppling head down। अगर कोई एथलीट दौड़ रहा है और जैसे ही फिनिशिंग रोप पर पहुंचता है वो अचानक से नहीं रुक सकता है, क्योंकि वो मोशन में है। अचानक से अगर रुक जाएगा तो गिर जाएगा वो, इसीलिए फिनिशिंग रोप के पास पहुंचने के बाद भी वो कुछ देर तक आगे दौड़ते रहता है, ठीक है। ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन है। अ कार टेक्स सम टाइम एंड मूव्स थ्रू सम मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अगर हम ब्रेक लगाते हैं कार को, तो कार तो मोशन में है, और सडनली अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो उसी जगह नहीं रुकता। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे कुछ दूर और चलता है। जैसे फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन अगर हमारा चल रहा है तो अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो वो सडनली रेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। वो एक रोटेशन धीरे 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 लगाते रहता है, फिर आकर के रेस्ट में है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। An oscillating simple pendulum bob does not halt at the mean position but continue to move further। ये आप देखते हैं कि अगर किसी पेंडुलम को हम डिस्प्लेस कर देते हैं अपने पोजीशन से तो वो कंटिन्यूसली मूव करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। When a car or bus turns around a sharp corner, we tends to fall sideways because of our inertia to continue to move in a straight line, ठीक है। अगर कोई कार या बस में हम बैठे हैं और वो कार पर किसी मोड़ पर सडनली टर्न लेता है तो हम एक साइड की ओर झुक जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कार ने टर्न लिया, लेकिन जो पैसेंजर है वो स्ट्रेट जाना चाहता है, क्योंकि कार भी स्ट्रेट चल रहा था पहले, तो पैसेंजर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस बिकॉज द जंपिंग मैन्स बॉडी इज़ इन द इनर्शिया ऑफ मोशन बट द लेग्स आर सडनली स्टॉप बाय द ग्राउंड एंड हेंस ही टॉपल्स डाउन, ठीक है।
वो आगे की ओर गिर जाता है। अगर कोई सडनली हम लोग ट्रेन से या बस से नीचे उतर जाते हैं तो हमारा जो लेग है वो तो रेस्ट में ग्राउंड के साथ आ जाता है, लेकिन बॉडी का जो में और पार्ट है वो मोशन में ही कंटिन्यू रहना चाहता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग से न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। ओके।